Okay, I have started recording today's class and we are going to do a small recap of gratuity exemption that we did in the last class. So, gratuity exemption is under section 1010. Exemption of gratuity का ये एक चार्ट है, ये वाला. So, if gratuity is received during the year, then it becomes fully taxable, including to a government employee, which means exemption is available only if gratuity is received at the time of retirement. I will repeat this. Exemption तभी मिलेगा जब ग्रेजुएटी रिटायरमेंट के वक्त मिल रही है. If it is received by a government employee, then whatever amount they have received is fully exempt. If an employee is covered under POGA, POGA is Payment of Gratuity Act, then the exemption is as per POGA. And as per POGA, what we need to understand is, so let me write it like this. Exemption here will be a 15 of 26 into salary last drawn into period of service. 15 by 26 into salary last drawn into period of service, or B, actual received, and C, maximum 20 lakhs. In case of non-POGA, it is 15 by 30 into average salary into period of service. So B and C are same for both. और ये तीनों में जो लीस्ट फिगर होगा वो बेटा एग्जाम्पशन क्या होगा, लीस्ट ऑफ द थ्री. ये तीनों में से जो लोएस्ट फिगर होगा वो. अब डिस्टिंक्शन देखते हैं. इधर डिवाइड बाय 26 करना है, यहां डिवाइड बाय 30 करना है. यहां सैलरी लास्ट ड्रॉन लेना है, मतलब जिस महीने में रिटायर हुआ उस महीने का सैलरी लेना है. यहां पे पिछले 10 महीने का एवरेज लेना है, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स. फिर यहां सैलरी में क्या क्या लेना है. तो सैलरी में बेसिक, डीए पार्ट, डीए नॉट पार्ट. एंड हियर इट इज बेसिक, डीए पार्ट एंड परसेंटेज कमीशन. Period of service in case of POGA, a part exceeding 6 months is considered as 1 year, whereas in non-POGA it is ignored absolutely. So one full year will only be eligible for gratuity. अगर पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा. ये हमने उस दिन कर लिया था, अभी रिकैप हो गया. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. नहीं पूछना है तो लेट अस ट्राई एंड डू अ सम. क्वेश्चन 10 कौन सा है? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? एक मिनट, आई विल जस्ट चेक दैट. मिट्ठीबाई, वेयर इज मिट्ठीबाई?
क्वेश्चन 10 ही तो है ग्रेजुएटी का. So question 10, I'll give it to you as homework. It is similar question. Question 11 we will do. Wait a minute. Sir, question 10 is related to pension. वो सागर वाला क्वेश्चन है ना? Yes, sir. So that is related to gratuity only. देखो पढ़ो. पेन वाला. अच्छा हाँ, रिलेटेड टू पेंशन. यू आर राइट. गॉट दैट. तो ये ग्रेजुएटी के बात करेंगे हम लोग. ओके, तो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन 10 मैंने सॉल्व तो किया है. ठीक है, डोंट नो इश्यूज. सो क्वेश्चन 11 कर लेते हैं जो हम अभी कर रहे हैं. क्वेश्चन 11 पढ़ते हैं. मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15th of June 2021 after completion of 26 years and 8 months. 26 years and 8 months उन्होंने काम किया और 15 जून को उनका फेयरवेल पार्टी रखा है. सब लोग बहुत इमोशनल है और उसको सी ऑफ कर रहे हैं. At that time he received a gratuity of 6 lakhs. जब वो रिटायर हो रहे हैं तब उनका सैलरी क्या है? बेसिक सैलरी 5,000 रुपए है. डियरनेस अलाउंस 3,000 पर मंथ है. एंड आउट ऑफ 3,000 60% is for retirement benefit, which means 60% is part of salary and 40% is not part of salary. Commission is 1% and turnover of 12 months was 12 lakh. Bonus is 12,000. Compute his taxable gratuity if he is POGA, if he is not POGA and if he is government employee. तो मैंने इसको 3 केसेस में डिवाइड किया. लेट मी erase all this. Let me erase the figures and keep other things so that I can explain it to you. Which song? Tell me which song. Nobody. Are all of you alive? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, that's good news. Okay. So case 1, private sector employee covered by POGA. So first is working note to find out what is his salary.
So salary defined as per POGA is basic plus DA part plus DA not part. So his basic salary is 5,000. DA part of salary is how much? Tell me. Come on, participate. So 1,800. Correct. And DA not part will be 1,200. 1,200. So that adds up to 8,000. Period of service. So period, he has worked for 26 years and 8 months. सर If ये he's- 1800 और 1200 टेबल समझा दो. हाँ जी, इधर देखो क्या लिखा है बेटा, डियरनेस अलाउंस 3000 बोला है और उसके दो पार्ट हैं. 60% इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट. सो 3000 का 60% 1800 होता है, विच इज पार्ट ऑफ सैलरी, एंड रिमेनिंग 12% इज नॉट पार्ट ऑफ सैलरी, रिमेनिंग 40%. ठीक है, ओके सर, ओके सर. right. And thank you for asking that question. पीरियड ऑफ सर्विस, अब अगर वो पोगा में कवर्ड है तो पोगा में लिखा है कि अगर 6 महीने से ज्यादा काम किया तो ऐसे मान लो 1 साल कर लिया, which means he has worked for 27 years. Now ये वर्किंग के बाद exemption of gratuity is 15 by 26 multiplied by salary, which we calculated as 8,000, multiplied by period of service, which is 27. So how much does this work out to, beta? गिन के बताओ. I said गिन के बताओ. I think you should have that much. Sir, बोलिए. sir, 1,24,615.38. So round off will be 1,24,615. 1,24,615. How much gratuity he has received is 6 lakhs as per the question. And the maximum exemption that the law allows is 20 lakh rupees. Maximum exemption that the law allows is 20 lakh rupees. तो एग्जम्पशन कितना मिलेगा? ये तीनों में जो लोएस्ट अमाउंट है उतना एग्जम्पशन मिलेगा. So exemption is least of above, which is 1,24,615. Now, this amount was actually as per the act. अब मान लीजिए आप रवि के एम्प्लॉयर हैं, तो अकॉर्डिंग टू एक्ट 1,24,000 देना चाहिए था. But you are saying no, Baba. Ravi was working with me for almost 27 years, and I don't want to go as per the act. I want to give more to Ravi. So I want to give him 6 lakhs. He can give, employer can give whatever he wants to. But then Income Tax Act says that on the extra amount that you have given, we will take tax from him. So exemption is 124. Taxable amount will be, effectively it is 6 lakhs minus 1,24,615. So this amount will become taxable if he is covered by POGA.
Any doubt, any question, you can ask. If no doubt, then copy this much. Case 1 पूरा कर लो पहले. अगर डाउट है तो पूछना चाहिए. डाउट अच्छे होते हैं. Sir, can you please explain ये 1,24,615 कैसे आया? ये कैलकुलेशन किया ना. 15 कैलकुलेटर ले बेटा. उसमें 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 27. Okay, sir. Thank you. वेलकम. तो ये पूरा फॉर्मूला है ना 15/26 into salary into period of service. इसका कोई लॉजिक तो नहीं है? यस, है ना लॉजिक. लास्ट लेक्चर में बताया था पूरा लॉजिक. लॉजिक क्या है मैं बताता हूं वापस एक बार. आपका एक महीने का पगार कितना है? 8,000 रुपया पगार है आपका. अब पोगा एक्ट ये कहता है ये एक महीने का पगार नहीं है, ये 26 दिन का पगार है, क्योंकि 4 तो संडे होते हैं. सो 26 डेज का ये पगार है. तो 15 दिन का पगार कितना होगा? 15 दिन का सैलरी कितना होगा? तो उसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. 15 इंटू 8,000 डिवाइड बाय 26. तो ये आ गया 4615. ये 15 दिन का पगार है. So Puga wants that for every 1 year that he has worked, he should get 4615. एक साल में 15 दिन जितना ग्रेजुएटी उसे मिलना चाहिए. तो उसने 27 साल काम किया ऐसा. तो इंटू 27 124,615 should he should get as gratuity. समझा? Yes sir, thank you sir. वेलकम बेटा. Anybody else? Any doubt? लिख के हो जाए तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे. Done, sir. Okay. So 2 minutes. Okay.
सर आंसर शो नहीं हो रहा. हो गया बेटा, बहुत टाइम लग रहा है. Yes, sir, done. Okay. So we come to case 2. Case 2 is a private sector employee who is not covered by POGA. Okay. अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा. यहाँ पे हमें जिस महीने में वो रिटायर हो रहा है उस महीने का सैलरी नहीं लेना है, हमें पिछले 10 महीने का सैलरी लेना है. आई विल रिपीट, डेफिनेशंस अलग अलग है. ऐसा क्यों है? तो पोगा का लॉजिक है कि जिस महीने वो रिटायर हो रहा है उस महीने का लीजिए. नॉन पोगा में पिछले 10 महीने का एवरेज लीजिए. तो इनका बेसिक सैलरी 5000 एक महीने का है, तो 10 महीने का 50,000 होगा. दस महीने का 50,000 होगा. फिर डीए पार्ट ऑफ सैलरी, डीए पार्ट ऑफ सैलरी, तो 3000 जो डीए है उसका 60% पार्ट ऑफ सैलरी है. ये तो एक महीने का हुआ, तो 10 महीने का कितना होगा? सो इट विल बी 18,000. चेक चेक, राइट रॉन्ग? Right, sir. Right. Now I want you to take a minute and tell me the figure. What I want is what I will ask you. एक मिनट सुन लीजिए पहले. Commission is 1%. And in last 12 months, I have sold goods worth 12 lakh. Who? Ravi. Ravi has sold goods worth 12 lakh. So I want 10 month ka commission. 10 month ka. It will be how much? 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh. Very good. So percentage commission 12 lakhs is for 12 months. So 10 months turnover how much? And then off that you will have 1%. So that will be 10 lakhs का 1%. Is it 1 10,000, lakh? sir. हाँ, it is 10,000, not 1 lakh. आपने 10% कर लिया जिन्होंने आंसर दिया था. Oh, sorry, sir. No problem. So total of 10 months is 78,000 and we want average salary. So 78,000 divided by 10 and that will give you 7,800. ये हुआ आपका एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स. तो हमें सारा कुछ पहले 10 महीने का लेना है और फिर डिवाइड बाय 10 करना है. ओके. हाउ मेनी इयर्स ही हैज वर्कड? 26 years and 8 months. And non-POGA says nothing doing, no concession for part of a year. How many completed year he has worked is 26 years. ये 8 महीना जो है उसको इग्नोर करिए सर आप. तो कर दिया इग्नोर 26. अब एग्जाम्पशन है 15/30. नहीं, ऐसे क्यों हो रहा है? 15/30 into average salary which we calculated as 7,800
into period of service we calculated as 26. तो बताइए क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? So 1,01,400. Okay. Actual gratuity received is 6 lakhs and maximum is 20 lakhs. So exemption will be least of the above, which is 1,01,400, and taxable gratuity will be lakhs minus 1,01,400. That will give you 498,600. ओके, कंप्लीट करो और कुछ डाउट है तो पूछो बेटा. सर इसमें हम डीए नॉट पार्ट नहीं लेते? नहीं बेटा, फॉर्मूला में जो कंटेंट लेना है उसका मतलब है, देख हमने बताया था आपको, जो थियरी लिखा था, देखो इधर क्या लेना है. नॉन पोगा में क्या लेना है? बेसिक, डीए पार्ट और परसेंटेज कमीशन. तो नॉट पार्ट हम नहीं लेते हैं बेटा. ओके सर, थैंक यू सर. वेलकम. सर हमने 15/30 क्यों लिया है? Again, वो divide by 26 was according to POGA. So those employees who are not covered by POGA, for them the logic is it is 30 days salary, not 26 days salary. तो ओके वो एक्ट में लिखा है इसीलिए हमने डिवाइड बाय 26 किया. अदरवाइज नॉर्मली वी टेक इट एज 30 डेज ना, एक महीने का इतना है तो आधे महीने का कितना.
हो गया बेटा? Sir, 1 minute, please. ओके Done, sir. Now, case 3 is the simplest. If an employee is a government employee, then gratuity received, which is 6 lakh rupees, will be entirely exempt. So less exemption under 1010 will be 6 lakhs and nothing will be taxable. Taxable gratuity will be nil. सर हमेशा पूरा ग्रेटिट्यूड जो होता है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है या कोई लिमिट होती है? पूरा ग्रेजुएटी एग्जाम्प्ट हो जाता है और एक्चुअली इसका फ्लिप साइड ये है कि गवर्नमेंट कभी उनके खुद के लॉ से ज्यादा नहीं देगी. तो ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है. बट यू इमेजिन यू आर गवर्नमेंट एंड यू हैव अ लॉ कॉल्ड पोगा. So if POGA is applicable, what you will give is as per POGA only. समझ में आ रहा है? यस सर, ओके सर. तो टेक्निकली इसीलिए हम फुल्ली एग्जाम्प्ट बोलते हैं कि जो वो देंगे वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही होगा. बट यहाँ पे जस्ट बिकॉज इट इज एन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन वी हैव केप्ट 6 लाख सेम. प्रैक्टिकल लाइफ में गवर्नमेंट को 6 लाख देंगे ही नहीं, 129 124 जो आ रहा है वही मिलेगा. समझा? यस सर, समझा. वेरी गुड. तो ये कंप्लीट हो गया. Done, sir. डन. ओके. अभी हमें नेक्स्ट सीखना है पेंशन का एग्जाम्शन. और इसके लिए हम आपको एक स्टोरी बताने वाले हैं पेंशन के एग्जाम्शन के लिए. ठीक है, ये उसका हमने फ्लो चार्ट बनाया है. सो आप ये पहले फ्लो चार्ट कॉपी करो बहुत अच्छे से. हाँ, कॉपी दिस सिस्टमैटिकली एंड देन आई विल टेल यू अ स्टोरी.
Done, sir. Okay. So now the story goes like this. Have you seen Sholay movie? Sholay? देखा है क्या? Yes. Yes. अगर नहीं देखा है तो आज होमवर्क में देख लेना आप. So, say the employer is Thakur and Company. Employer is Thakur and Company, okay? और उसके, अरे यार ये तो पिक्चर का स्टोरी अभी लीक हो गया. पिक्चर का स्टोरी लीक हो गया. एक मिनट. हाँ, okay. So Thakur and Company is the employer. उनके दो होनहार एम्प्लॉइज हैं, वीरू एंड जय. वीरू मतलब धर्मेंद्र और जय का मतलब अमिताभ बच्चन. दोनों पिछले से 30 इयर्स से काम कर रहे हैं ठाकुर एंड कंपनी में, और काफी सारे गुंडों को मारा है. और आज उनके जॉब का लास्ट डे है, लास्ट डे. तो ठाकुर ने सबको पार्टी दिया है एंड ठाकुर ने अनाउंस किया कि हम आप दोनों को हर महीने पेंशन देंगे. 10,000 rupees per month is pension which we will give you every month. ठीक है. Now you know the character of Veeru is played by Dharmendra and he had some bad habits, है ना. अल्कोहल कंज्यूम करता था बहुत ही भारी मात्रा में. तो उसका किडनी, लीवर सब खराब था. He requested Thakur that instead of giving 10,000 per month, now figures are example to explain you the point. Don't stick to sir ऐसा कैसे होगा, है ना. तो फिगर्स पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये एग्जाम्पल लिया है. तो धर्मेंद्र ने, वीरू ने ठाकुर को रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे ये 10,000 पर मंथ नहीं चाहिए. आई हैव अ मेडिकल इमरजेंसी and I need some lump sum money for that. So Thakur ne calculate kiya. This is where I am saying it's an example, so don't stick to the figures. So Thakur ne calculate kiya that say Dharmendra is going to survive for another 20 years और 20 साल अगर जीता है, then how much money I will have to pay him over 20 years. So that is 10,000 per month, so 12 months into 20 years. How much is this? Come on beta, participate करो, जल्दी करो. 24 lakhs. So Very good. This is 24 lakhs. Now in maths आप एक concept सीखोगे called time value of money. जो जिन बच्चों ने CA फाउंडेशन की परीक्षा दे दी है उन्होंने सीख लिया होगा a concept of time value of money. Is there anybody who has learnt? ऐसा कोई है? Please raise your hand. ऐसा कोई नहीं है. अच्छा बेटा. Okay. So Thakur can tell Veeru that I will not give you 24 lakhs, Baba, right now. If you want money right now, I will give you something called present value of annuity. तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं नहीं सिखा रहा हूं अभी, वो उस चैप्टर में सीखोगे आप. एन्युइटी
तो say he calculated the figure and it came to 20 lakh rupees. 20 lakh rupees. So instead of giving 24 lakh, Thakur is giving 20 lakhs. If you are Viru, will you agree to this? Say yes or no? Yes. Yes, sir. Yes. Why not? आपको इतना जल्दी पैसा मिल रहा है एक साथ, तो वीरू ने उसे जितना भी पेंशन मिलने वाला था उसको लंप सम एक साथ ले लिया और उसे कहा जाता है 100% कम्यूट किया उसने, 100%। इसके बाद वो ठाकुर के पास जाएगा नहीं। आफ्टर दिस ही विल नॉट गो टू ठाकुर टू टेक पेंशन एट ऑल। So it is called as commuted pension or it is called as lump sum amount. उसका दोस्त है, तो ये पार्ट हम बाद में करेंगे। हाँ, उसका दोस्त है जय, बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी है, एकदम ठहरा हुआ शांत आदमी है, and he has no bad habits, so he has saved sufficient money out of the monthly salary that he used to get. So he has a sizable saving and doesn't depend on huge money for medical emergencies. So he said to Thakur, okay sir, I am happy, I will come every month and take 10,000 till I survive. So जो पेंशन उससे मिलता है उसे कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड का मतलब होता है पीरियोडिकल। In example, I have taken per month. It could be per quarter also, it could be per 6 months, per year. तो जय ने कहा सर मैं हर महीने आऊंगा और आपसे पेंशन लेकर जाऊंगा। अभी जरा टैक्सेबिलिटी समझते हैं। तो जय को जो पेंशन मिल रहा है उसे अनकम्यूटेड पेंशन कहा जाता है। आपने जो चार्ट बनाया है वो मैंने यहां से डिलीट कर दिया है राइट में से। आप मुझे बताइए उसका टैक्सेबिलिटी क्या लिखा हुआ है फ्रॉम द चार्ट। Sir, uncommitted, fully taxable. करेक्ट, फुल्ली टैक्सेबल। और नीचे लिखा है इंक्लूडिंग फॉर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, which means even if Thakur is a government company, the monthly pension that Jai gets will be fully taxable, no exemption there, fully taxable. So 1,20,000 that he gets will be fully taxable. Now एक और बात बता दूं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये अनफेयर है, आफ्टर रिटायरमेंट मिल रहा है, देन व्हाई शुड इट बी टैक्सेबल? ऐसा लग रहा है कि नहीं? हाँ बोलो ना बोलो। Yes, sir. यस, एक बच्ची ने बोला। So I think it depends on the amount. अगर ओके, पेंशन ज्यादा अमाउंट की है तो फिर टैक्स देना चाहिए, बट अगर लाइक कुछ कंसिडरेबल अमाउंट के लाइक तो फिर आपको नहीं देना चाहिए इस पर टैक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड इफ यू आर निर्मला जी कौन है? सर मूवी नहीं देखी, समझ नहीं आ रहा। मार खाएगी, मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ। Finance minister. हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। हाँ, सो इफ यू आर निर्मला Oh. जी, हाँ, इफ यू आर निर्मला जी, देन हाउ मच वुड बी दैट अमाउंट? इससे ज्यादा हम टैक्स लेंगे, इससे कम होगा तो नहीं लेंगे? कुछ भी बोल सकते हो बिंदास, डोंट वरी, यू हैव पुट योर ओपिनियन फॉरवर्ड। Sir, 5 Where- lakhs. 5 lakhs, Yes, okay, 5 great. So I will explain it to you. जिन्होंने पहले कहा ना कि अनफेयर लग रहा है, तो मैं बताऊं ये अनफेयर नहीं है। पूछो क्यों, तो मैं बता देता हूं। तो से हमने पहले इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट किया, उसमें तो हमने लिख दिया 1,20,000 फुल्ली टैक्सेबल। फिर बाकी कुछ और इनकम होगी उनकी, शायद इंटरेस्ट इनकम होगी, तो वो भी हमने ऐड कर दिया। अब टोटल इनकम से आ जाता है 2 लाख रुपया, टोटल इनकम 2 लाख आ जाता है। तो अभी जब हम टैक्स, ये इनकम है, अब हम जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे
तो पहले लेक्चर में आपको स्लैब्स दिखाए थे, इफ यू रिमेंबर. Yes, sir. So Yes, on sir. 2 lakh rupees, there is no tax at all. There are slabs. So I'm not going in there, but there are slabs of income. So irrespective of how much he is getting, up to a certain amount, he is not supposed to pay tax. So is this taxable? Answer is yes. Will he end up paying tax? Maybe no. Are you getting what I'm saying? Yes, sir. बताना रिपीट करता हूं. क्या ये 1,20,000 टैक्सेबल है? तो आंसर है हाँ. इनकम कैलकुलेट करते वक्त इसको ऐड करना पड़ेगा. तो इनकम मान लो इनका 2 लाख रुपए आ गया. अब 2 लाख रुपए पे टैक्स नहीं है इंडिया में. अप टू 2.5 लाख देयर इज नो टैक्स. कुछ कुछ केसेस में तो 5 लाख तक टैक्स नहीं है. तो हम अभी उधर नहीं जा रहे हैं, वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बाद में करेंगे. बट द पॉइंट इज 2 लाख अगर इनकम है तो टैक्स नहीं भरना है. सो whether he will finally pay tax or not depends on his total income. हमें एक एक इनकम पे टैक्स नहीं कैलकुलेट करना है, उस बंदे के टोटल इनकम को गिनना है और फिर टैक्स के बारे में सोचना है. So is this 120 to be added when I compute income? Answer is yes. Will I pay tax on this 120? God knows, it depends on total income. समझा? यस सर समझा. Good. Now coming to धर्मेंद्र जी. धर्मेंद्र ने फ्यूचर इनकम को कम्यूट करके आज पैसे ले लिए हैं. तो कम्यूटेड पेंशन दैट ही हैज टेकन इज 20 लाख रुपीस. नाउ उसे एग्जम्पशन कितना मिलेगा ये इस बात पे डिपेंडेंट है दैट ही हैज रिसीव्ड ग्रेचुइटी और नॉट. आप अगर चार्ट देखेंगे तो उसमें दो पार्ट कर दिए हैं. If he has received gratuity, then exemption is 1/3, and if he has not received gratuity, then exemption is half. आप मुझे बताइए जरा मैथमेटिकली 1/3 बड़ा होता है, 1/3 बड़ा होता है या हाफ बड़ा होता है? आई एम कंफ्यूज. Half, sir. Half, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. कुछ कुछ बच्चे कभी ये डिवाइड बाय 3 है ना तो 3 बड़ा है ऐसे बोलते हैं. तो यू आर राइट, हाफ इज बिगर. सो व्हाट द लॉ इज सेइंग इज अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिला है तो उसका एग्जम्पशन भी नहीं मिला होगा. अगर उसका एग्जम्पशन नहीं मिला है तो पेंशन का एग्जम्पशन हम आपको ज्यादा देंगे, हाफ देंगे. और अगर ग्रेचुइटी मिला है तो पेंशन का एग्जम्पशन 1/3 होगा. ठीक है. तो वो जो फॉर्मूला है वो मैं बाद में अभी बताता हूं. इधर एक और कैरेक्टर आने वाला है हमारा. सो हाफ इंटू 20 लाख. 20 लाख पेंशन है, दैट इज 10 लाख रुपीज इज एग्जाम्प्ट. हमने हाफ अभी अज्यूम किया है कि उसे ग्रेजुएटी नहीं मिला है. अगर ग्रेजुएटी मिला होगा तो ये 1/3 हो जाएगा. ठीक है. यहां तक कोई डाउट पूछना है तो पूछो बेटा. नहीं है. अभी काफी बच्चों ने पिक्चर देखा नहीं है तो ज्यादा मजा नहीं आएगा स्टोरी में. पिक्चर देखना चाहिए, अच्छा पिक्चर है, मजा आएगा आपको. कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, इमोशन भी है, तो देखना चाहिए हाँ पिक्चर. भी ये क्या हो रहा है यार, वेट करो. हाँ हमारे दूसरे कैरेक्टर को ला रहे हैं पिक्चर में, तो सस्पेंस है थोड़ा. ये आ गया हमारा दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर जिसका नाम है गब्बर. Gabbar's character is played by Amjad Khan, who is a villain in the movie. Okay, he is not an employee of Thakur in the picture, but I am assuming, मेरा पिक्चर है, मैंने बनाया है, तो गब्बर भी ठाकुर का एम्प्लॉई है.
Gabbar is also alcoholic, but he is not as much as Veeru is. तो वो ठाकुर को रिक्वेस्ट करता है, सर I don't want to commute entire pension. I want to commute 60%. And I will come to you every month to take 40%. So he is 60% Veeru and 40% Jay. समझ में आया पवन सर गया? समझ आया सर। समझ आया। तो ठाकुर ने उसे 12 लाख रुपए अभी दे दिए भाई, कम्यूटेड पेंशन, एंड ही विल कम एवरी मंथ टू कलेक्ट 4000। ठीक है, तो अभी जो अनकम्यूटेड पेंशन है 4000 रुपया महीना, 48,000, ये तो फुल्ली टैक्सेबल हो गया भाई, फुल्ली टैक्सेबल। अब आते हैं कम्यूटेड पेंशन पे। कम्यूटेड पेंशन मिला है 12 लाख रुपया, और एग्जाम्शन में हमने फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। फॉर्मूला क्या लिखा है? 1/3 या हाफ इंटू कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन कम्यूटेड। तो इनकम टैक्स का लॉजिक ये कहता है कि धर्मेंद्र हो या अमजद खान हो, दोनों को एग्जाम्शन सेम मिलना चाहिए, 10 लाख 10 लाख। तो अगर इन्होंने 12 लाख रुपए लिए हैं, if 60% is 12 lakhs, then 100% would be how much is the question they are asking. So if 60% is 12, 100% will be 20 lakhs. And they are saying ये जो हाफ या 1/3 लेना है वो 20 lakhs का लेना है, 12 lakhs का नहीं लेना है, which means both of them will get the same amount of exemption, and taxable amount for Gabbar will be 2 lakh rupees. Shoot your doubts. ये पेंशन का एक्सप्लेनेशन मेरे तरफ से कंप्लीट हो गया। अभी आपको अगर कुछ शंका है, कोई संदेह है, तो बेझिझक पूछ सकते हैं। पूछो पूछो। कोई नहीं है सर समझ संदेह? हाँ, तो कॉपी कर लो फिर। ग्रेट, कॉपी दिस, एकदम अच्छे से सिस्टमैटिकली 10 लिखो। लाख की जगह 6 लाख होना चाहिए ना? किधर बेटा? इधर, यहाँ पे? गब्बर के केस में नहीं ना, क्यों 6 लाख होना चाहिए? तू कर 20 lakhs डिवाइड बाय 60% करना है बेटा। 12 lakhs डिवाइड बाय 60%, तो 20 lakhs आएगा, और 20 lakhs का हाफ 10 lakhs। हाँ सर। मैं समझा आपका मिस्टेक, मतलब क्यों हुआ अभी देखने होगा, ये ब्रैकेट कर दिया, ठीक है ना?
हाँ बोल जीतो. Good morning. हो गया बच्चा लिख के? Sir, 2 minutes. Okay. Done, sir. Okay. So So last 1 minute. okay, take it. It'll also come in a minute. तब तक आप लिख लो. चलिए डन हो गया. Yes, sir. Yes. So let us see where my file has gone. Question 10 भी हमने solve कर लिया था. ठीक है, एक कॉपी कर लेते हैं. Create a copy. Let this be question number 10. Okay, give me just a minute. I will copy the question. I'll go here. Insert.
illustrations, screenshot, screen clippings. Question number 10. आ गया. Yes, नहीं है. So Mr. Sagar retired on 1st of October 2020, receiving 5,000 per month as pension. इसमें थोड़ा कुछ Sir, have you बोलिए shared बेटा. the screen? is not The visible. screen is not visible. Okay, I got that. I'll share it again. Don't worry. Yes, is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. That's great. So इसमें आप है ना एक छोटा सा मिस्टेक करोगे अगर आप प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे तो. Let us see whether you do that mistake or not. So I give you a hint. Sagar retired on 1st of October, receiving 5,000 per month as pension. On 1st February, he went to his boss and commuted 60% of his pension and received 3 lakh as commuted pension. You are required to compute his taxable pension, assuming he's a government employee, he's a private sector getting gratuity, he's a private sector not getting gratuity. तो ये तीनों सिनेरियो हमें कैलकुलेट करने हैं, तीनों सिनेरियो. ठीक है, तो आपको एक 2 मिनट का समय देता हूं मैं. मुझे बताइए अनकम्यूटेड पेंशन कितना होगा. मुझे बताइए अनकम्यूटेड पेंशन कितना होगा. Sir, 2000 per month uncommuted होगी. तो पूरे साल का कितना होगा ये बता. 24,000. Sir, 22,000. 22,000. February Okay. से शुरू. मार खाएगी. मिस्टेक कर रही है बेटा, ध्यान से कर. Sir, 24,000. No. तो सुनिए, पहली बात, सागर जी 1 अक्टूबर को रिटायर हुए हैं बच्चा. तो का क्या? हाँ जी 18,000. 18,000. चल मैं देखता हूँ. हाँ Okay. नहीं रे बेटा, चलो अभी ध्यान दो, गड़बड़. सिर्फ सब बोल. फरवरी से लेकर अक्टूबर तक का बचा है. नहीं. Okay, sir. So last person to give the answer. Anybody? Nobody. Okay. So listen carefully. Sir, Yeah.
बोलो 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 30,000. 3,000 Sir, 20,000. 20,000 okay नो थोड़ा बढ़ाओ जरा थोड़ा बढ़ाओ हिंट दे रहा हूं 22. अच्छा ऐसा थोड़ा और बढ़ाओ तो 24 कर देगी सुनो सब लोग चलो अभी स्टॉप कैलकुलेटिंग let us understand so we are calculating income for which year 2021 का कैलकुलेट कर रहे हैं हम अच्छा ईयर गड़बड़ हो गया है मेरे से ठीक है एनीवेज तो 2021 का हम कैलकुलेट कर रहे हैं हाँ बोलो ना बोलो Yes, sir. यस Yes, sir. इधर एक्चुअली ईयर गड़बड़ हो गया है मैं चेंज कर दूंगा जब हम सॉल्व करेंगे तो कंसिडर दिस एज 21 एंड दिस एज 22 ओके तो लेट मी डू दैट वे Okay. ओनली ना इसको 21 करना इसको 22 करना हाँ सो वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 21 22 so he retired on 1st October so in the month of October he will get 5,000 as pension in the month of November he will get 5,000 as pension in the month of December he will get 5,000 as pension in the month of January he will get 5,000 as pension अब वो February 1st को बॉस के पास गया और बॉस को कहा सर मेडिकल इमरजेंसी सर सो आई डोंट वांट 5,000 एनीमोर आई वांट 2,000 नाउ एंड इन मार्च आल्सो आई वांट 2,000 ये कैसे आया बताओ सोचो Sir, 3,000 is 1,000 still minus under 60%. हाँ ये अनकम्यूटेड पार्ट है 5,000 में 60% कम्यूट कर दिया है तो 40% अनकम्यूटेड है तो ये तो मिलेगा ना उसे जनवरी फरवरी और मार्च में तो वो शुरुआत के कुछ महीनों में वो जय था हाँ जय था और फिर वो थोड़ा वीरू बन गया तो पूरे साल भर में उसे अनकम्यूटेड पेंशन कितना मिला है 24,000 किसी ने तो बोला था क्या 24 डिड समबडी से दैट हाँ सर मेरा भी 24 आया था नीही का भी आया था 24. वेरी गुड दिस इज हाउ यू हैड कैलकुलेटेड Yes, sir. then I am sorry then you were right very good जिनका भी रॉन्ग हुआ उनको समझ आया क्या गड़बड़ हुआ Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट तो ये अनकम्यूटेड पेंशन जो है क्या वो फुल्ली टैक्सेबल होगा Yes, sir. यस तो अभी हम करते हैं ये सब जाने दो ये मजा नहीं आ रहा ये सब डिलीट कर दें ये भी सब निकाल और हमने 2 कॉलम्स रखे हैं ये हो गया ये केस 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉय uncommuted pension October till January 5,000 into October November December January 4 months that comes to 20,000 and Feb and March 5,000 into 40% into 2 months so that comes to 4,000 so the total pension which is uncommuted is 24,000 is this fully taxable even if the employee is a government employee say yes or no Yes, sir. Yes. Yes, sir. yes fully taxable for everybody now comes commuted pension
सो कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड कितना कितना मिला उसे? 3 लाख रुपया। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जाम्शन कितना होगा बेटा? बोलो बोलो। अगर वो full- गवर्नमेंट, हाँ फुल एग्जाम्प्ट होगा, वेरी गुड। तो पूरा एग्जाम्प्ट होगा एंड टैक्सेबल अमाउंट विल बी निल। एनी डाउट? No, sir. इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। Done, sir. Done, sir. चलो केस 2 करेंगे। मैं ये सब कॉपी कर लेता हूं, फिर चेंजेस करेंगे। केस 2, केस 2 इज प्राइवेट विथ ग्रेजुएटी, ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है? प्राइवेट विथ ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी कितना मिला है हमें कंसर्न नहीं है उससे। अनकम्यूटेड तो सेम होगा ना बेटा? yes sir. Yes, sir. यस। कम्यूटेड पेंशन में एग्जाम्शन गिनना पड़ेगा। तो एग्जाम्शन कितना? ग्रेजुएटी अगर मिला है तो एग्जाम्शन 1/3 होगा। 1/3 ऑफ व्हाट? 1/3 ऑफ commuted pension, that is 3 lakh, divided by fraction commuted, that is 60%. So if 3 lakh is 60%, how much would be 100%? 5 lakh. और 5 lakh का 1/3, 5 lakh का 1/3, how much is that? 1,66,667. So this much will become taxable. समझा या बाउंसर गया? Understood, sir. ग्रेट। नाउ गिव मी अ मिनट, मैं दूसरा भी गिन लेता हूं, इजी है एकदम। ये आ गया केस 3। केस 3 is private without gratuity. Again uncommuted same है। commuted में this fellow will become half। अगर ग्रेचुइटी नहीं मिला है तो पेंशन का एग्जाम्शन ज्यादा मिलेगा, which will be 2.5 lakh। सो 50,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है बेटा। चलो डाउट नहीं है तो सॉल्व करो सर।
Done, sir. Sir, 2 minutes. So can you go back there just for a minute? हो गया बेटा? कितना टाइम? Done, sir. ओके, चलो अभी हमें 3 एग्जाम्पशन सीखने थे। एक था पेंशन का, एक था ग्रेचुइटी का, और तीसरा हमें सीखना है लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट, और उसका सेक्शन है 1010 AA। अगेन आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये जो चार्ट मैंने बनाया है वो पहले आप कॉपी कर लें, बहुत अच्छे से कॉपी कर लें, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो चार्ट हो जाए तो मुझे बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक्सक्यूज मी सर। बोल बेटा। सर थोड़ा जूम कर देंगे प्लीज। पूरा नहीं दिखेगा फिर। सर नीचे करना थोड़ा सा।
Done? Done, sir. Okay. Now, leave policies are company dependent. मैं अगर एम्प्लॉयर हूं तो मेरे एम्प्लॉइज को कितने दिन की छुट्टी देनी है वो मैं डिसाइड करूंगा. तो द HR policy, human resource policy may differ from company to company. What we are learning here is what does Income Tax Act say about leaves? I will repeat. हम यहां पे क्या सीख रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है लीव्स के बारे में, और अगर किसी को लीव एनकैशमेंट मिला, लीव एनकैशमेंट का मतलब लीव के बदले पगार मिला. तो यहां पे एक एग्जांपल लिया है, हाँ, कि मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने 15 साल काम किया कंपनी में, ठीक है, 15 साल काम किया. तो ये 15 साल में उन्हें 15 महीने की छुट्टी मिल सकती थी. 15 महीने की छुट्टी मिल सकती थी. एवरी ईयर 1 मंथ. उनके रिकॉर्ड्स HR डिपार्टमेंट ने रखे थे. So when he was leaving, when he was retiring, when he was terminated, whatever, the leave taken by him during the entire tenure worked out to 12 months. तो उनके खाते में 3 महीने की छुट्टी बच गई थी. तो उन्होंने बॉस को रिक्वेस्ट किया that I have worked enough and I have 3 months leave balance. Can you give me money in lieu of the leave? क्या आप छुट्टियों के बदले मुझे वो 3 महीने का पगार दे सकते हैं? Now I said in the beginning whether to give or not is the HR policy of the organization. What we are doing is if it is given, how much will be exempt and how much will be taxable? That is what we are trying to learn here. So section 1010AA says that अगर ये leave encashment आपने ड्यूरिंग रिटायरमेंट लिया, सॉरी ड्यूरिंग सर्विस लिया है, मतलब आपकी जॉब अभी चल रही है, रिटायर नहीं हुआ है, तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. से एग्जाम्पल 15 साल हो गए, अभी नौकरी छोड़ा नहीं है, हम वहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं और बॉस ने हमें 3 महीने के लीव का पैसा दिया, देन इट विल बिकम फुल्ली टैक्सेबल इंक्लूडिंग फॉर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. If I'm getting this at the time of retirement and if I'm a government employee, then it is fully exempt. If it is other than government, then the exemption is least of. यहां पे 4 वैल्यूज हैं. पहला है एवरेज सैलरी इंटू लीव क्रेडिट, दूसरा है एवरेज सैलरी इंटू 10, तीसरा एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड, और चौथा मैक्सिमम 3 लाख रुपए. ये चारों में से जो लोएस्ट अमाउंट होगा उसका एग्जामिशन मिलेगा. यहां पे ये जो एवरेज सैलरी है, इट हैज द सेम मीनिंग एज नॉन पोगा. तो नॉन पोगा में जो एवरेज सैलरी हम गिनते थे उसी तरह से इधर भी एवरेज सैलरी गिनना है. मतलब इट इज एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एंड सैलरी शुड इंक्लूड बेसिक, DA part and commission. So far with me? Any doubt so far? Repeat करूं एक बार? हाँ सर. हाँ जी. तो आई होप यहां तक तो समझ गया होगा. अगर मैं अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और मुझे लीव एनकैशमेंट मिल रहा है तो एग्जाम्पशन विल बी लीस्ट ऑफ दीज 4 फिगर्स. ये चारों हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें से जब सबसे लोएस्ट है उतना एग्जाम्पशन मिलेगा. सो लेट मी टेक फिगर्स एंड एक्सप्लेन. ओके, इट विल बी मच बेटर. तो से मिस्टर एक्स रिटायर हो रहे हैं, उनके खाते में 3 महीने का छुट्टी बचा हुआ है, अभी लीव क्रेडिट है 3 महीने का. उनका एवरेज सैलरी 20,000 रुपए है. 20,000, तो 20,000 इंटू 3,
60,000 ये आपका पहला फिगर होगा। सेकेंड फिगर है 20,000 इंटू 10। ये 10 क्यों है बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी लॉ में लिखा है 10 इंटू 10 करना है बस। तो 2 लाख रुपए उनके बॉस ने उनको लीव एनकैशमेंट दिया, से एग्जाम्पल 75,000 दिया, और इनकम टैक्स कहता है भाई ये जो है मैक्सिमम एग्जम्पशन हम 3 लाख का देंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ये चारों में लोएस्ट कितना है? 60,000। तो आपको 60,000 का एग्जम्पशन मिलेगा। अब आपको लीव एनकैशमेंट मिला है कितना? 75,000 मिला है। एग्जम्पशन कितना मिल रहा है? 60,000। तो 15,000 विल बिकम टैक्सेबल। समझा गया? यस सर। Yes. Yes, sir. यस। और ये 20,000 जो हमने गिना है वो कैसे आया सर? तो वो सेम तरीके से आएगा जैसे अपने ग्रेचुइटी नॉन पोगा में गिना था वैसे। तो वहां पे हम बेसिक सैलरी काउंट करेंगे, डीए पार्ट ऑफ सैलरी काउंट करेंगे, और टर्नओवर कमीशन काउंट करेंगे, और ये 10 महीने का एवरेज निकालेंगे हम। कोणाला डाउट आहे का? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? सर लीव किसी को? क्रेडिट कैसे निकाला वो बता दीजिए। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आप एक पूरा साल काम करते हैं, ऐसा 1 full year इफ यू वर्क, देन यू आर एलिजिबल फॉर 30 days लीव। तो हम 30 days लिखने के जगह पे मैं 1 month लिखता हूं, एक ही बात है। 1 month लीव। एक साल काम करो, 1 महीने का छुट्टी आप ले सकते हो। सो इनडायरेक्टली सेइंग आप 11 महीने काम करो और 12 महीने का पगार मिलेगा। समझा कि नहीं समझा? यस सर। समझ गया। तो दिस इज व्हाट लॉ सेज। तो ये भाई साहब ने 15 साल काम किया तो उनका लीव एलिजिबिलिटी 15 साल 15 महीने था, 15 months। ठीक है। अब जब भी लीव लेते हैं ना, तो एक लीव एप्लीकेशन देना पड़ता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है, आपके बॉस का साइन लेना पड़ता है। तो साइन करके आपको वापस देंगे। 1 copy will go to HR, 1 copy will remain with your boss. This may directly happen in a software also. In a big organization, there will be softwares doing this. तो वहां से डेटा मिल गया that in these 15 years you have taken 12 months leave in total, which means 3 months leaves are credit. आपके नाम पे 3 महीने की छुट्टी बची हुई है। समझा? यस सर। Very good. So let us do one sum. Question number 12 आ गया। अगेन थोड़ा सा डिलीट कर दें हम चीजों को। थोड़ा है, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा यार। I think because I'm copying that image, it seems it happens. I don't know. I don't know. Are you enjoying studies? Say yes. Yes. यस सर। Yes, sir. Good. आप लोग बॉम्बे कब आ रहे हो सब लोग? 15th So November। 10th. 10th नवंबर को आ रहे हो, दिवाली के बाद? हाँ। Yes. गुड गुड। पीजी वगैरह ढूंढना पड़ेगा ना? यस सर। Yes. Must be some beautiful years of your life. One of the regret that I have about my life is I wanted to stay in a hostel for a few years. Unfortunately, I did not get a chance. That is the only regret I have. वो लाइफ मजा आता है ना बच्चे लोग? सर इट्स नेवर लेट। अरे यार, अभी 2 बच्चों का
अभी बहुत लेट हो गया रे, अभी तो हिमालय में जाने का टाइम हो गया नहीं। सर वो तो शाबाश। सबका हुआ हो। हाँ, पर अभी आजकल जाना मुश्किल है भाई, बहुत लैंडस्लाइड, फ्लड्स। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। आई एम रेडी विथ द क्वेश्चन। ये रहा। मिस्टर गुप्ता retired on 1st of December 2021 after 20 years and 10 months of service. तो देखो, नॉन पोगा में जैसा है ना वैसा ही लीव एनकैशमेंट में है। नॉन पोगा में क्या है, 1 year इज 1 year, पार्ट ऑफ अ ईयर इफ यू वर्कड तो उसको इग्नोर किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी है, आपने 20 साल 10 महीने काम किए, ये 10 महीने को भूल जाओ सर आप, हमारे हिसाब से आपने 20 साल काम किया, फुल कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ही गिना जाता है। सो ही रिटायर्ड। अच्छा, ये फिगर मैं चेंज करने वाला हूं क्वेश्चन में, ये 60,000 है, 6 lakhs नहीं है, ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो आफ्टर रिसीविंग लीव सैलरी ऑफ 60,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज सैलरी वॉज, तो बेसिक सैलरी था उनका 5,000 रुपया, 1,000 was increased with effect from 1st April 2021। अब ये कहां पे कंफ्यूज करेगा, तो हमें पिछले 10 महीने का एवरेज लेना है। तो अभी तक के सम में ये ब्रैकेट नहीं होता था, तो पिछले 10 महीने में हर महीने 5,000 है, पर अभी गड़बड़ है, पिछले 10 महीने में कुछ महीने में 5,000 है, कुछ महीने में 4,000 है। ये समझा के बाउंसर क्या? समझा। Understood, sir. समझे। वेरी गुड। तो ये हमें ये इधर वर्किंग जो बनाया है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पिछले 10 महीने का टोटल क्या था और फिर एवरेज निकालना पड़ेगा। बेसिक आपको पता है, डियरनेस 3,000 60% पार्ट ऑफ सैलरी, कमीशन 500 पर मंथ, क्या इसको कंसिडर करेंगे हम? यस सर। नो। पूछो क्यों नो सर? क्या हुआ है ना। हाँ जी, because it should be part of sales commission. हाँ, करेक्ट। यहां पे 500 पर मंथ दे रहे हैं, which means though the name is commission, it is not linked to sales at all. So वो जो ऐड करते हैं वो वाला कमीशन ऐड करना है जो सेल्स पे आधारित है, सेल्स पे डिपेंडेंट है। ये पर मंथ वाला कमीशन नहीं लिया जाएगा, इसको इग्नोर करेंगे, बोनस को भी इग्नोर करेंगे। लीव अवेल्ड ड्यूरिंग सर्विस, तो ये 20 साल में उन्होंने टोटल 480 दिन का छुट्टी लिया है। So can I say 16 months? यस Yes, Yes, sir. प्योर 80 को 30 से डिवाइड किया तो 16 महीने का छुट्टी सर जी ने लिया है। He was entitled to 30 days leave every year, come to this taxable salary, assuming he's a non-government and he's a government. तो पहले ये काम करते हैं, पहले एवरेज सैलरी हमें गिनना है। तो 1 अप्रैल से उनका इंक्रीमेंट हुआ है, अब पिछले 10 महीने लेना है। 1 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं, तो पिछले 10 महीने, तो ये नवंबर से मैं स्टार्ट करूं, बैकवर्ड जाऊं, तो फेब तक मुझे जाना पड़ेगा 10 महीने गिनने के लिए, ठीक है ना। नवंबर से उल्टा जाके गिनना पड़ेगा बेटा, 10 महीने कब कंप्लीट हो रहे हैं, तो फेब में कंप्लीट हो रहे हैं। तो 1 अप्रैल के पहले यानी कि मार्च में उनका पगार 4,000 था, फेब में भी 4,000 था, और उसके बाद उनका पगार 5,000 हो गया। तो ये 5 ऊपर लिख के मैं कॉपी कर लेता हूं। तो टोटल सैलरी 48 हुआ 10 महीने का। CS नो? Yes, sir. यस सर। यस। तो मैंने इधर अलग तरीके से वर्किंग किया हुआ है, ये तो आपको समझाने के लिए किया। बेसिक सैलरी, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है आज? बेसिक सैलरी
of 10 months. So what I'll do here is I will say 4,000 into 2 plus 5,000 into 8. And that gives me 48,000. परसेंटेज कमीशन कुछ नहीं है बाबा, परसेंटेज कमीशन नहीं है क्वेश्चन में. अरे रे उल्टा लिखा, ये 48,000 ऊपर लिखना है, ये तो डिलीट करना है, ये गलत लिखा है, कंट्रोल एक्स ऊपर चला गया, कंट्रोल वी. डीए पार्ट ऑफ सैलरी, तो डीए पार्ट ऑफ सैलरी कितना है बेटा? 60% है, 3,000 का 60%. सो 1800. correct, but that is for 1 month. Into 60% and into 10 करना पड़ेगा बेटा. So this comes to 18,000. 66 is total and average will be 66,000 divided by 10, which will give you 6,600 as average salary. Period of service 20 years and 10 months is equal to 20 years. इसमें कोई दया माया नहीं है, पूरे साल गिनने हैं, अधूरे साल को इग्नोर करना है. तो लीव एलिजिबल कितना होगा बेटा? 20 मंथ्स होगा. लीव टेकन इज 480 डिवाइड बाय 30. तो लीव टेकन आपका हो गया 16 मंथ्स. तो लीव क्रेडिट हो गया 4 महीने. लॉक किया जाए. Yes, sir. So now if I come here, इधर नीचे भी है. चलो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेते हैं. गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड, I said 60,000 is what we have received. So if it's a government employee, then entire 60 is exempt and nothing is taxable. If I'm an employee with, I'm a private employee, ग्रेजुएटी का इधर कोई मतलब ही नहीं है. प्राइवेट एम्प्लॉय 60,000 मिला है और एग्जाम्शन कितना मिलेगा? तो ये 4 केसेस हैं. एवरेज इनटू लीव क्रेडिट. एवरेज सैलरी कितना आया था बेटा ऊपर? 6,600. 6,600. Am I going fast? Hello. No, sir. No. No, sir. Okay. So average salary is 6,600 into 4. How much will that be? 26,400. Average salary into 10. Actual leave encashment received. Maximum. तो एग्जाम्शन कितना मिलेगा बेटा? 26,400 मिलेगा. लीव एनकैशमेंट मिला है आपको कितना? 60,000. तो टैक्सेबल होगा 33,600. समझा? Yes, sir. Yes, sir. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट आपको 26,400 लीव एनकैशमेंट मिलना चाहिए था. आपके एम्प्लॉयर ने आपको ज्यादा दे दिया. उसने क्यों ज्यादा दिया? एम्प्लॉयर का एचआर पॉलिसी कुछ अलग होगा. सो ही गेव 60,000. बट इनकम टैक्स एक्ट कहता ना 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 60,000 थोड़ा ज्यादा हो गया सर. अकॉर्डिंग टू अस ही शुड हैव गॉट ओनली 26,400. So according to us he got 33,600 more. So according to us he should pay tax on this. So here we will write how much is exempt, which is this figure, and the balance will become taxable. किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछो. नहीं पूछना है तो कॉपी करो धीरे धीरे.
सर नीचे करना। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए प्लीज। Done. यस सर। Sir, can you please scroll down? Thank you, sir. Okay. चले, इसको हमने सेव कर दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। We have 5 more minutes. नहीं, ये क्वेश्चन बड़ा है, आई वाज राइटिंग। लिख ले। तो अभी 5 ही मिनट बाकी हैं। मैं नया कुछ नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम क्लोजिंग द रिकॉर्डिंग। You have any questions for me? You can ask. We'll take those questions. We are not starting a fresh question.